الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تھوڑی دیر چند باتیں، پونے 2 بج چکے ہیں اور ابھی شہزادگان میں سے کسی کا کچھ بھی بیان نہیں ہے۔ وہ غالباً حضور مناقب بھیا کا بیان ہونا ہے اور حضور مہران ملت کا بیان ہونا ہے، حضور فارغ ملت کا بیان ہونا ہے۔ یہ تین شخصیتیں اور ذاتیں ابھی باقی ہیں۔ تو چند باتیں اس ماحول میں ہم تھوڑی سی کہہ لیتے ہیں، اس کے بعد ابھی ناطقہ بھی لوگ ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ایک عظیم ذات، عظیم شخصیت حضور ناصر ملت، جو یوں کہہ دیجئے کہ مرد قلندر، شریعت و حقیقت کا بہترین سنگم، مروت و رواداری کا باغ و بہار، سنیت و رضویت کا بہترین پہرے دار، شہزادہ حضور شیر سنت، حضور ناصر ملت کی جلوہ گری ہے۔ اور ماحول آپ کیسا بنا کے رکھے ہیں، کیسا ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ ارے سرکار معصوم ملت نے ابراہیم کو، آپ کے اس دیار کو میخانہ بنا دیا ہے، میخانہ بنا دیا ہے۔ ابھی دیکھو حیدرآباد کا آدمی بھی ادھر ہے، کرناٹک کا آدمی بھی ادھر ہے، بمبئی کا آدمی بھی ادھر ہے، اور بہار کا آدمی بھی یہاں ہے، بنگال کا آدمی بھی یہاں ہے۔ تو کہاں کرے آیا ہو؟ کہیں اور دیکھ لے تو گاؤں کو نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ گاؤں کے لوگ بھی نہیں ہوں گے۔ ادھر دیکھو آپ، بنگال کا، بہار کا، بمبئی کا، کرناٹک کا، کلکتہ کا۔ میٹر یہ ہے نا، مست جس جام میں پی لے وہی پیمانہ بنے۔ سبحان اللہ۔ مست جس جام میں پی لے وہی پیمانہ بنے۔ اور کیوں آئے ہو آپ جانتے ہو؟ جس جگہ بیٹھ کے پی لے وہی میخانہ بنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس جگہ بیٹھ کے پی لے وہی میخانہ۔ اور سب لوگ یہاں جگہ جگہ سے آئے ہوئے۔ ہمارے مفتی صاحب قبلہ نے بڑا اچھا بیان دیا، بڑا اچھا بیان کیا۔ ایک بات انہوں نے کہی، وہ کیا؟ افضلیت اور فضیلت۔ بولے ہم فضیلت بتاتے ہیں یا افضلیت سمجھتا ہے؟ اس مسئلے پر تھوڑا سا کلام کرنا بہت ضروری ہے، کلیئر کر دینا ضروری ہے۔ کسی شاعر نے کہا، مطلب وہ کلیئرٹی ابھی بھی نہیں ہے، جو انہوں نے کہا اس میں اجمال ہے، کلیئر تھوڑا کرنا بہت ضروری ہے۔ کسی شاعر نے کہا، ایک شعر پڑھ دیتا ہوں پھر کلیئر کرتا ہوں، کیا رائے؟ نگاہ جس کی وسیع و بلند ہوتی ہے، نگاہ جس کی وسیع و بلند ہوتی ہے، اسی سے اس کی تباہ بہرہ مند ہوتی ہے۔ اور ہر ایک دل میں سماتی نہیں ہے حب علی۔ دل بھی مطلب کئی طرح سے ہوتا ہے بھیا میرے۔ ہوں ایکس رے کروایا ہوں، ایکس رے کہیں کروا کے دیکھ لو تو کہوں تھاپا مل جائے، کہوں سعودیہ جائے کوئی تو وہ حجاب ہو،
तो पासपोर्ट में लिया, वहीं नौकरी लाए रही, तो कहूँ धब्बा हो गया, तो कहूँ वापस कर दिए, कहूँ कुछ हो गया। ये सारे मामलात होते। तो दिल साफ सुथरा होना चाहिए, दिल सड़ा हुआ हो, बेकार हो। शायर ने कहा कि हर एक दिल में समाती नहीं है हुब्बे अली। देखो ना, किसी का चेहरा बन जाता है, बिगड़ जाता है, न जाने क्या हो जाता है। जबकि आज के 20 साल पहले जब हम बंबई में तकरीर करते थे, मुहर्रम का बयान करने जाते, तो जब हम किताबें देखते तो हम अपने आप में सोचते, यार ये हदीस है, रिवायत है, इतनी ज्यादा है अहले बैत के बारे में, तो बयान खाली अपने दिन क्यों करते हैं? ये एक ही दिन का है करते। मैंने अपने कुछ अहबाब से इजहार भी किया। तो अभी अगर किसी को तकलीफ होती है तो सुनिए, हर एक दिल में समाती नहीं है हुब्बे अली, ये बड़ी ही नफासत पसंद होती है। नफासत पसंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। अजीबो गरीब मामला है। अब वही है कि ये नफासत पसंद बहुत होती है। अब तो हाँ, रखियो सड़ा है, दिलो सड़ा है, तमन्नो सड़ा है, अल्लाह ताला समझ अता फरमाए, हमें अहले बैत की मोहब्बत में जीना है। हर एक दिल में समाती नहीं है हुब्बे अली, ये बड़ी ही नफासत पसंद होती है। जरा सा देखो, मुफ्ती साहब किबला ने भी कहा कि वो हजरत अली को जो फजाइल दिए गए, चेतना दिए गए, उतना किसी को नहीं दिए गए। एक सवाल है इस जुमले पर कि जितना दिए गए उतना किसी को नहीं दिए गए। मगर ऐसा तो हो सकता है कि एक फजीलत इनको दी गई और वही उनको भी दे दी गई। आप तादाद बता रहे हैं, कसरत तो बता रहे हैं। जितनी फजीलत दी गई अली को, जितनी रिवायतें हैं किसी को नहीं है। मगर ऐसा तो मुमकिन है कि एक फजीलत इनको भी है, इनको भी है, इनको भी है। ऐसा तो हो सकता है ना, हजरत अबू बकर को भी हो, हजरत उमर को भी हो, हजरत उस्मान को भी हो। मगर मैं वो ठीक है, मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं। ये देख, किताब का नाम तारीखुल खुलफा, क्या नाम है? इमाम स्यूती की। और एक किताब का नाम है अस्सवाइकुल मुहरिका, इमाम हैसमी की। दोनों हवाले को नोट करो। क्या नाम है किताब का? तारीखुल खुलफा। उसमें लिखा हुआ है काना ले अली की समान अशरा का मन काबातन मकाना ले अदी मिन हाज़िहिल उम्मा 18 मन कबते अली को ऐसी मिली जो उम्मत में किसी को नहीं मिली है। अच्छा, एक बात बताओ, अस्सवाइकुल मुहरिका को गलत कह देंगे? क्या गलत लिख दिया उन्होंने? तारीखुल खुलफा में गलत लिख दिया उन्होंने। इमाम स्यूती वो है, आला हजरत कहते हैं कि इमाम स्यूती ने ऐसा लिखा। और जो मुसन्निफ मोतबर हो तो अशरफुस सियर में लिखा है किताब का मोतबर होना बल्कि ही ये नियम है। तो 18 मन का बताए हजरत अली को ऐसी मिली जो उम्मत में किसी को मिली ही नहीं, मिली ही नहीं है। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। तो अब ये बात अगर बता दे तो कहते हो कि अरे वो अफजल कह दिया, अफजल कह दिया। ये बताओ, ये क्या? इधर देखो, इधर इधर देखो ऊपर, ये क्या है? इनके जितने बड़े जलसे होते हैं ये लगा रहता है। ये बताओ, इसमें पहले नंबर पे किसका नाम है? किसका बोलो? अबू बकर सिद्दीक।
हाँ, पहले सरकार का नाम और सहाबा में सबसे पहले किसका नाम है? हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम। तो करे बादो जबरदस्ती ना तू कहाँ था? नहीं, तुम्हारा ही अकीदा है। जबरदस्ती जबरदस्ती वो देख तुझे, देख देख पहले किसका नाम है? किसका नाम है? हजरत अबू बकर सिद्दीक का। अभी कुछ कह दो। अरे हम क्या कह रहे? ये देख इमाम हैसमी और तारीखुल खुलफा कहते नज़ला फी अली मा नज़ला ले हादी मिन आदी। हजरत अली के बारे में जो आयतें उतरी है, नज़ला नज़ला ले हादी मिन किताबिल्लाह, नज़ला फी अली मिन किताबिल्लाह मा नज़ला ले हादी। हजरत अली के बारे में किताबुल्लाह की जितनी आयतें हैं वो किसी के बारे में नहीं है। तारीखुल खुलफा में और इमाम हैसमी ने अस्सवाइरुल मुहर्रका में लिखा कि नज़लत फी अली सलासो मियते आयतिन। हजरत अली के बारे में कुरान की 300 आयतें आई है। सुभान अल्लाह सुभान। कितनी आयतें आई है? कितनी आयतें आई है? 300 आयतें आई है। अब बोलो आप। वही लोग ये भी कहते हैं कि हजरत अली के बारे में जितनी आयतें आई है किसी के बारे में नहीं है, ये भी लिखा हुआ है। तो अगर ये कह दे तो कौन सा पूरा? अच्छा, गलत कहोगे इमाम हैसमी को, गलत कहोगे तारीखुल खुलफा को, हाँ? नहीं कहोगे ना, तो इनको काहे गलत कह रहे हो? काहे गलत कह रहे हो? यही बात तो ये भी कह रहे हैं, यही बात तो ये भी कह रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, वो साहब क्या कह रहे हैं? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अच्छा, उससे पहले एक रिवायत तो याद आई है, अस्सवाइरुल मुहर्रका की, वो सुन लीजिए आप। मैदान महशर होता है और कब्र। ये बताओ, जन्नत में जाने के लिए पहले मौत आएगी ना? हाँ, यहीं से उड़ के पहले मौत आएगी ना? कब्र में जाओगे, फिर मैदान महशर में जाओगे, फिर पुलसिरात से गुजरोगे, तभी तो जन्नत में जाओगे। मौत आई, नमाज़े जनाजा पढ़ा, कब्र में रखे गए, रहे जब वो वक्त आया, हश्र बपा हुआ, मैदान महशर में पुलसिरात कायम है। अभी मैदान महशर है, लेकिन जन्नत में जाने के लिए पुलसिरात से भी गुजरना पड़ेगा। और पुलसिरात से जब जाने लगे, तब तक वहां कुछ लोग खड़े हुए थे। इनको कहाँ जा रहे? कुरान मुकद्दस सूरह साफ़ात में वाक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून कुरान कहता है। ओ, नोट करने वालों नोट करो, मेरे बाप का नहीं है। ये क्या बोल रहे? गलत बोल रहे हैं। ये देख कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान को गलत क्या है? कुरान की है इन्नहुम मसऊलून। जब वो पुलसिरात से गुजर के जन्नत में जाना होगा तो कहाँ जाना? बोले अरे इधर से जाकर के तभी तो जन्नत में जाएंगे। बोले रुको, थोड़ा सा एक टेस्ट लेना है। अरे टेस्ट? पुलसिरात से गुजरना खुद टेस्ट है तो तुम मेरा तुम मेरा शान। बाल से ज्यादा बारीक हो, तलवार से ज्यादा तेज पर गुजरना, ये एक इम्तिहान है। अब ये है, अब जब उधर चले जाएंगे तब कोई ऐसा नहीं मिलेगा बोलने वाला। नहीं, ऐसा नहीं लिखा है किताब में कि कोई ऐसा बोलेगा। अरे रुको, सवाल करना है। क्या सवाल करना है? इधर क्या सवाल करना है? कुछ सवाल कर दो, उधर पुलसिरात से गुजरना है, कहा अभी नहीं। कुछ सवाल का जवाब दे दो, तब जाने दिया जाएगा। कौन सा सवाल है? सवाइरुल मुहर्रका का मुसन्निफ लिखता है इन्नहुम मसऊलून,
اے ولایت الولایت علی رضی اللہ تعالی سبحان اللہ پلسرات سے پہلے پوچھا جائے گا یہ پتہ ولایت علی مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا حیدری یا علی یا علی حیدری یا علی یا علی عاشق کس کے دیوانے کس کے چاہنے والے چاہنے والے مٹنے والے مٹنے والے حیدر 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 حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی دیکھیے فضائل کی بات کی جاتی ہے کچھ باتیں بتا دی جاتی ہیں تو طرح طرح کی باتیں ہونے لگتی ہیں. ابھی مسئلہ ہوا تھا ہم کچھ پڑھتے ہیں ایک نمبر دو نمبر والا ایک نمبر کہہ دیا تو کیا پرابلم ہے کیا دقت ہے ایک نمبر پہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سنیے لکھا ہوا ہے وہ اول من اسلم وأول من جمع القرآن وأول من سمى مصحف وأول من سمي خلیفہ. حضرت ابو بکر صدیق کے اوائل یہ ہیں. حضرت ابو بکر ایمان لانے میں ایک نمبر پہلی بات یہ آئی قرآن کے جمع کرنے میں ایک نمبر قرآن کو مصحف نام رکھنے میں ایک نمبر خلیفہ ان کو پہلے کہا گیا اس میں ایک نمبر ٹھیک ایک نمبر پہ ہے نا. اور بھی بہت ساری ہے کتاب دیکھ لیجیے آپ تفسیر میں جائیے تاریخ الخلفاء نے پورا سب اوائل بیان کیا ہے جا کر کے دیکھ لیجیے. حضرت عمر کے بارے میں آیا وہ اول من سمي امیر المؤمنین واول من اتخذ بیت المال واول من كتب التاريخ من الهجرة وأول من عصى بالليل وأول من سن قيام شهر رمضان وأول من عاقب على الهجرة وأول من صرف في الخمر ثمانين. سبحان اللہ سبحان عربی کیا بولے گئے اللہ سمجھ عطا فرمائے. دیکھیں گا کیا ہوتا ہے سچائی جاننا چاہتا ہے وہ اصل میں میرا ذہن نہیں تھا یہ بولنے کا مولانا سے اصل لے آئیے تو یہ کیا مطلب جو بھی میں نے کہا حضرت عمر فاروق اعظم امیر المومنین ہونے میں ایک نمبر پہلے ان کا نام رکھا گیا ٹھیک. تاریخ ہجری مقرر کرنے میں ایک نمبر پہلے انہوں نے کیا. بیت المال کو مقرر کرنے میں ایک نمبر پہلے انہوں نے کیا. اور تراویح وغیرہ جماعت کے ساتھ بہترین کر کے قیام کرنا ایک نمبر وہی پہلے انہوں نے کیا. رات میں پہرہ داری سب سے پہلے انہوں نے کیا ایک نمبر. اور کیا بولتے ہیں شراب پینے میں 80 کوڑا لگانے میں ایک نمبر سب سے پہلے انہوں نے کیا. تو یہ ان کے ایک نمبر حضرت ابو بکر صدیق کا بھی بتایا نہیں بتایا ایک نمبر ان کا تو 8 تک تو بتا دیا. تو یہی تو اگلے نے کہا ایک نمبر وہ بھی ایک نمبر وہ بھی ایک نمبر ایک نمبر وہ بھی. اگر یہی مراد لیا کاہے غلط کہہ رہے ہیں ان کو بولو غلط ان کو بولو غلط ان کو بولو غلط.
اور इनको अगर गलत नहीं कहते तो उनको क्या गलत कह रहे हो, क्या गलत कह रहे हो। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। देख इमाम मुहिब अत्तबरी जैसे लोग लिखते हैं अहब्बुल खल्क इलल्लाह बादन नबी, ये हेडिंग है ज़खाइरुल उक़बा, ज़खाइरुल उक़बा फी मनाकिब ज़मील क़ुरबा, इसके अंदर ये हेडिंग लगाई है उन्होंने। क्या कि रसूलुल्लाह के बाद अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा प्यारा अली है। अब बोलो सबसे ज्यादा प्यारे तो ये है ना, ये बोलो कि उन्होंने इमाम मुहिब अत्तबरी ने गलत लिखा, गलत हेडिंग लगाई, ताबीर करेगा ना कि ताबीर करेगा इसका ये मतलब, इसका ये मतलब, इसका ये मतलब, तो अगर वहां ताबीर कर सकता है तो उधर क्यों नहीं ताबीर कर सकता है, उधर क्यों नहीं ताबीर कर रहा है। अल्लाह ताला समझ दे, इंसाफ इंसाफ करो। ये देखो हजरत अबू बकर सिद्दीक थे ना, खाली उन्हीं का मैटर नहीं, हजरत उस्मान गनी का मैटर, हजरत उस्मान गनी के बारे में आया अव्वल मन खफदा सौतहु बित्तकबीर, तकबीर में आवाज को सबसे पहले धीरे हजरत उस्मान गनी ने किया। हजरत उस्मान गनी व अव्वल मन अत्तल अता वअव्वल मन हमल हिमा, पहला वो शख्स जिसने चरागाहें मुकर्रर की, जागीरें मुकर्रर की, जागीरें मुकर्रर करने में उस्मान गनी एक नंबर, चरागाहें मुकर्रर करने में उस्मान गनी एक नंबर, वअव्वल मन अमरा बिल अज़ानिल अव्वल फिल जुमा, और पहले वो शख्स हैं जिन्होंने जुमा में अज़ान अव्वल का हुक्म दिया, ये इसमें एक नंबर। तो किताबें तो बता रही है हजरत उस्मान गनी भी एक नंबर, हजरत उमर भी एक नंबर, हजरत अबू बकर भी एक नंबर, और किताब ये भी बता रही है अव्वलु मन यक़रउ बाबल जन्नह बादन नबी हो अलीयुन, पहला वो शख्स नबी के बाद जो सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खटखटाएगा वो कोई और नहीं अली है, वो अली है। सुभान अल्लाह सुभान। किसको विलायत का वली अच्छा नहीं लगता, किसको विलायत का वली अच्छा नहीं लगता, भगोड़ों को कभी शेरे गली अच्छा नहीं लगता, भगोड़ों को कभी शेरे गली अच्छा नहीं लगता। बाबा की मोहब्बत में मोहम्मद ने ये फरमाया गलत माओ के बच्चे को अली सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। तो ये सब है मामला, समझिए एक नंबर, एक नंबर, एक तरफ से दारुल कुलबा ने सबका एक नंबर किया है, ठीक है। तो अब क्या ये गलत है, नहीं, ये फिर इस पर एतराज होगा, इस पर ये अगला एतराज करेगा। मैंने कहा ये करना जरूरी है, एतराज ये करेंगे ये अव्वल जो है ये अव्वल अददी कह लीजिए, नहीं होता, ये सामने से या पीछे से भी हुई है। हाँ ये अव्वल रोतबी नहीं है, अव्वल शरफी नहीं है, ये तकद्दुम जो है ये और तकद्दुम रोतबी नहीं है, तकद्दुम अददी है, किसी की काम करने में पहले उन्होंने कर लिया। और वो जो बोले हैं एक नंबर, वो शरफन वो रोतान बोले हैं। तो हम ये कहेंगे जुल्लुल मोमिनीन खैरा, तू है के बता दी पूरी में है कि कौन जुल्लुल मोमिनीन खैरा, मोमिनों के बारे में अच्छा बयान करो। फिर क्यों माहौल कर रहे हो सकता है उन्होंने यही मुराद लिया हो। और सुन लीजिए एक बात बताऊं, कुछ लोग पहले जमाने में भी गुजरे हैं जो हजरत अली को अफजल कह रहे हैं, हजरत अली को अफजल कहा। आला हजरत जानते हैं जब जवाब देते हैं किताबें लिखते हैं, मतलब कमरे में देखिए, मतलब कमरे में आला हजरत बहस करते हैं, बहस करते हैं, बहस करते करते जाते हैं। तो जिन लोगों ने पहले दौर में कहा था कि हजरत अली अफजल है, आला हजरत उनका जवाब देते हुए कहते हैं कि हो सकता है, तवज्जो रहे, उलमा की खास तवज्जो, आला हजरत जवाब देते हुए कहते हैं हो सकता है उन्होंने तकद्दुम इस्लाम में अफजल कहा हो।
यानी हजरत अली के बारे में भी ये आया है ना कि सबसे पहले ये इस्लाम है, इनके बारे में भी है। तो आला हजरत कहते हैं जो रिवायत जो दलील आप पेश करते हैं वो रियाजुन नजरा की मनाकिबिल अशरा में मौजूद है और फतावा अजीजी में मौजूद है कि इन्होंने कहा। तो जो रिवायत जिनके बारे में आप कहते हो कि इन्होंने अफजल कहा, हो सकता है उन्होंने तकद्दुम इस्लाम के बारे में कहा हो, तकद्दुम इस्लाम के एतबार से कहा हो कि पहले अली इस्लाम लाए उसके बाद आला हजरत फरमाते अगर उन्होंने इस माने में कहा तो ये हमारे मुनाफी नहीं है। खसाइस में हम मानते हैं कि कोई अफजल से हो सकता है। ये देखिए मतलब कमरे इधर मौजूद है, वो भी यहाँ ठीक है। आला हजरत फरमाते हो सकता है तकद्दुम इस्लाम वगैरह फजाइल खासा जुजिया में तफसील देते, फजाइल खासा जुजिया में तफसील देते हो और ये माना हमारे मुनाफी मकसूद नहीं है। हम खुद मौला अली के लिए खसाइस कसीरा का सबूत तस्लीम करते हैं। तो अगर ये जवाब वाला हजरत देते हैं कि तकद्दुम इस्लाम में कहा हो अफजल, तो अगर तकद्दुम इस्लाम की बुनियाद पर अली को अफजल कहा जा सकता है और अली कहते हैं आला हजरत कहते हैं ये हमारे मकसूद से टकरा नहीं रहा है, हम खुद मानते हैं, तो हो सकता है तकद्दुम इस्लाम की बुनियाद पर एक नंबर कहे हो या अफजल कह दे। अभी मैंने इमाम हैसमी की रिवायत पेश की, 18 मंक़बत ऐसी है जो उम्मत में किसी को नहीं मिली। तो क्या आला हजरत अहले सुन्नत के खिलाफ है? क्या ये अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है? मुझे कैसा मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अहले सुन्नत ही को नहीं समझा। स्टैंड देना अपना जरा स्टैंड। क्या आला हजरत स्टैंड मिन जमील वजूद फजाइल के कायल है कि कोई भी फर्द बाहर ना हो। मिन जमील वजूद अफसर होने के कायल है कि एक भी फर्द बाहर ना हो, ऐसा नहीं है ना। आप मतलब कमरे पढ़ लीजिए। अब आला हजरत कहते हैं किसी एक चीज में अगर कोई अफजल हो जा रहा है, जैसे तकद्दुम इस्लाम का जिक्र किया, इसमें अगर कोई अफजल कह दे रहा है तो आला हजरत कहते हैं ये हमारे मकसूद के मुनाफी नहीं है, टकराव नहीं है। तो इस तरह से जो तावील है तो आप कर दीजिए ना, यहाँ करेंगे वहां नहीं कर रहे हैं, इमाम हैसमी में करेंगे वहां नहीं कर रहे हैं, तारीखुल खुलफा में करेंगे उधर नहीं कर रहे हैं। तो आखिर जब